Hello students, how are you? We have already started polynomials and I have told you how you can find the roots of the equation by finding the factors and zeros of and the relation between the zeros of a polynomial and the coefficients, which we have already explained in last video. Just we are going to revise the things, especially for quadratic equation, that if there is any quadratic equation ax square plus bx plus c, there are, if you have degree 2, it means you are getting two roots only, that is alpha and beta. What we have already studied in last videos, that sum of two roots alpha plus beta equal to minus b by a, and product of root is your b by a is equal to c by a. Okay, we have already studied and studied also that what if the roots are given, then how we can find the quadratic equation. What was the derivation? That it was a formula that x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0, and you can find the quadratic equation if you are having the roots of the equation. The roots always satisfy the equation. By when we substitute the value of roots, we get the final answer we get is 0, that we call a zeros of a polynomial. We have already studied these things. Okay, now today what I am going to explain you is that finding the unknowns. If in any quadratic equation some number is not given, till now you have given, we have done all the digit 2x square plus 3x plus 5 like that. Okay, लेकिन अगर हमें कोई unknown दिया गया है, if some unknown is given, तब क्या करेंगे? What we will do then? How we'll find the relation between zeros and the coefficient of a polynomial. ठीक है? What is that? Means let us assume one question. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, मान लीजिए alpha और beta क्या है? Zeros of any quadratic polynomial. The quadratic polynomial is what? F of x equal to x square minus px plus q. Okay, minus px plus q. Then find the value of. Then find the value of alpha square plus beta square first, and second 1 by alpha plus 1 by beta. Okay, you have to find the value. देखिए ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नो क्वेश्चंस आर गिवन इन एनसीईआरटी. ओके, बट ये सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी नहीं आएंगे, आगे जाके काम आएंगे. आपके एमसीक्यू में सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. यही सारे क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी में आगे जाके एनडीए में पूछे जाएंगे क्लास 12 के बाद, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप दोगे जहाँ पे आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ सारे ये सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे. इवन इट विल बी इंक्लूडेड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो, राइट? सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन. ओके, इट मीन्स वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट के बारे में बताया था. सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा. Okay, what is alpha plus beta? Second term upon first term minus of second term upon coefficient of second term upon first term. You are getting p. You are getting p. Product of root alpha beta यानी क्या हो गया? c by a. यही पढ़ा था हमने. इक्वल टू क्या था? माइनस b by a. फॉर्मूला के हिसाब से c by a. इट मीन्स क्या आ गया अपना? q by 1 विच इज इक्वल टू q. ठीक है, ये हमको मिल गया. हमारा फॉर्मूला ये है ना, सम ऑफ रूट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b by a माइनस इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तो वैल्यू लिख लिया, आ गया हमारा. ठीक है, अब क्या करेंगे? हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब ये आएगा कहाँ से? First of all, recall all the algebraic formulas. What we have, having alpha square and beta square, it means you are getting and you are having these two terms. हमारे पास क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. Do you know this formula? Right? Now use this formula because we know the value of this thing, we know the value of this thing, and we have to find this thing. Okay? It's simple. What? Alpha square plus beta square equal to what we will get? Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta.
Simple. You are having the value of alpha plus beta, that is equal to p square minus 2q. Substitute the values of alpha plus beta and alpha beta, you will get the value of answer. Your answer is yes, p square minus 2q, right? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा. बहुत आसान है ये तो, सिंपल है. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, यहाँ पे क्या जाएगा भाई, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. हो गया, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वी गिव द वैल्यू विल बी सेम, व्हाट, p बाई q. आ गया आंसर, सिंपल. ठीक है. सो इफ द थिंग्स आर लाइक दैट, if some quadratic equation is given and your roots has been given and you have to find this type of thing, all the algebraic formulas should be remembered. ठीक है. जनरली अब क्यूबिक हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब दे देगा, तो अपन a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में चले जाएंगे. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. चलिए और क्वेश्चंस उठाते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, बट आपको क्या काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव में काम आएंगे, एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव आर आल्सो लाइक दैट, राइट? ओके, अगेन वी हैव अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड. ये तो कर लिया अपन ने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको बताने की जरूरत नहीं, डन. ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा. इस इक्वेशन में अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. सेकेंड इज योर अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा. ओके. थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके. ठीक है. अब देखो भाई, ये तो प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. ओके. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी बताया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ठीक है. क्या आ गया भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अरे यहाँ तो निकालना ही भूल गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा भाई, यहाँ सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए. अल्फा बीटा क्या आ गया यहाँ पे, सी बाई ए. तो गिवन है जैसा था वैसा ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. ओके. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए. यू आर गेटिंग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और यू कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है. यू कैन राइट बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन ए स्क्वायर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेकेंड वाला देखिए. फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड पे आते हैं. क्या आ गया, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा. ओके. सो व्हाट वी आर गेटिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया भाई, हमने तो अभी डिराइव कर लिया, मेरे पास तो वैल्यू है. क्या है वैल्यू भाई मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, c by a. Okay, I am writing direct the value of this, c by a. Right? Cancel it out. You are getting b square minus 2ac upon ac. Okay? Then फटाफट अब आ गया क्यूब. क्यूब देखते ही मैं कहाँ चली जाती हूँ, क्यूब का फॉर्मूला क्या है भाई मेरे पास, क्यूब का फॉर्मूला बताओ तो जरा. a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस है कि माइनस है उसके बाद, हाँ, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, नहीं माइनस थोड़ा ना होगा तो प्लस में ही रहेगा ना, प्लस में तो कोई माइनस आता ही नहीं, माइनस में ही आपका ऑल्टरनेट प्लस माइनस. तो ये आ गया फॉर्मूला. लेकिन मुझे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला मेरे पास, बताओ. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू
a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी लिख दिया क्या? ओ नो, अल्फा प्लस बीटा लिखना था ना भाई सब में, अल्फा बीटा। चलो फिर से लिख देते हैं भाई, क्या आ गया फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा। So what we are getting? Alpha cube plus beta cube equal to alpha plus beta whole cube minus 3 alpha plus beta. Okay, substituting the value of alpha plus beta is minus b by a whole cube minus 3 alpha beta is your c by a. Alpha beta is your minus b by a. Okay, what you are getting? B cube by a cube with negative sign, and minus plus you are getting plus 3bc by a square. Okay, or simplified a cube equal to 3abc minus b cube. Final answer. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आता है क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हैं, तो ये पूरा इसके लिए, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है? वी शुड नो ऑल द क्या बताओ, एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले पता होंगे, तो ये हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एमसीक्यू ऑलवेज, अदरवाइज ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके, ठीक है, अब और इसी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए इफ देयर इज एनी कांस्टेंट एंड वन रूट इज गिवन, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, एंड फाइंड द कांस्टेंट। द क्वेश्चंस may come from that side also. Okay, so the questions may come like that. If alpha and beta are the zeros of a polynomial f of x equal to x square minus 5x plus k, look कांस्टेंट नहीं दिया गया, उसकी जगह पे k दी गई है। ठीक है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो अपन को क्या पता है, अल्फा बीटा रूट है, जब भी k की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, हमको मालूम है कोई भी एक रूट निकालो, तो एक रूट निकालो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाता है, वो रूट इक्वेशन होता है, वो इक्वल टू 0 होता है, तो हम उस k की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, अपने पास क्या है, फ्रॉम दिस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इट मीन्स माइनस ऑफ -5/1, you are getting 5. Okay, alpha beta equal to k, right? Now we are having alpha minus beta and we are getting alpha plus beta. Okay, so what is the value? What we have to do is alpha minus beta, right? Alpha minus beta का whole square is equal to 1, no problem. What we are getting? Alpha square plus beta square minus 2 alpha beta equal to 1, but I am not having the value of alpha square plus beta square. So what I can do here is alpha square plus beta square, right, plus 2 alpha beta minus 4 alpha beta equal to 1. I have added plus 2 and subtracted minus 2 in this equation, ठीक, so that this becomes alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta equal to 1. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 का स्क्वायर minus 4 alpha beta k equal to 1. What you are getting? 25 minus 1 equal to 4k. It means 24 equal to 4k
and k is equal to 24/4 which is equal to 6. Simple. ठीक है? I don't think any problem will come. Okay? Right? ठीक है? अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके से दिया जाता है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम लिख देते हैं, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसे आता है तो यही इतना बड़ा कैलकुलेशन ना होके यूं शॉर्टकट ट्रिक में सॉल्व होता है। कैसे शॉर्टकट ट्रिक समझो, क्या आ गया, x² - 5x + k जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है। आपका दो इक्वेशन निकल गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गए दोनों इक्वेशन। आप दोनों को सॉल्व कर लो, क्या मिल गया, 2 अल्फा इक्वल टू 6 अल्फा इक्वल टू 3 आ गया, एक रूट आ गया। अब देखो एक रूट आ गया, वो रूट तो सेटिस्फाई करेगा ही, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि वो तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, हमको तो ये पता है। तो इसकी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ गया भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस के शुड बी इक्वल टू 0। आंसर तो 0 आना चाहिए ना, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है ये। तो क्या आ गया भाई, 9 - 5 × 3 = 15 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6। देखिए ठीक, ये भी 6, ये भी 6। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत मैंने हमेशा कहा है मैथ्स को इंजॉय करिए, इंजॉय मैथ्स, फील रिलैक्स्ड व्हेन यू आर सॉल्विंग मैथ्स, तभी मैथ्स करने में मज़ा आएगा। जैसे गेम खेलने में आता है ना मज़ा, वैसे ही मैथ्स करने में भी मज़ा आएगा। मैं इसलिए हमेशा बोलते हैं मैथ्स मैजिक है, मैजिशियन सबसे ज़्यादा मैथ्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है, मैथ्स तो हर जगह यूज़ होता है भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आराम से इंजॉय करके सॉल्व करो, प्रेशर में कभी मैथ्स मत करो। डोंट बी इन प्रेशर व्हेन यू आर डूइंग मैथ्स, इंजॉय मैथ्स। राइट, ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चंस आएगा, चलो और क्वेश्चंस देख रहे हैं। राइट, देखिए, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल दैट इज f of x इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहला क्वेश्चन क्या, पहले सुनो, फाइंड द इफ द सम ऑफ अ स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ मतलब जो स्क्वायर है तो दो इसके रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा। तो हमको दिया क्या गया है, उन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इस 40, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 गिवन है मेरे को, मुझे ये गिवन है x² माइनस 8x प्लस के। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। ठीक, इसको देखिए, अब आपका सॉल्व कैसे होगा, ये बहुत आसान है, कोई खास तो तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। इसको बताओ, ये तो आप लोग भी सॉल्व कर लोगे। क्या आ जाएगा बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा यहाँ से हिसाब से, कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ऑफ -8 विच इज़ यू आर गेटिंग 8, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना आ गया 8 और अल्फ़ा बीटा कितना आ गया मेरे पास k। ठीक है, आ गया, सिंपल आ गया मेरे पास। क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आ गई। इसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आ गई 40 प्लस 2 k कितना आ गया, 64 में 40 माइनस करेंगे तो 24 इक्वल टू 2k, k की वैल्यू आ गई मेरी 12। खत्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पे नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, क्लियर है।
ठीक है, बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्यूबिक भी आज बता दें क्या? नहीं, क्यूबिक ज़्यादा हो जाएगा, आज अगर बता देंगे इसी का क्यूबिक तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्यूबिक कराने से पहले हम क्या करेंगे, आपको डिवीजन एल्गोरिथम जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं उसको सिलेबस के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगी, जो आगे चल के आपको बहुत ईजी वे में शॉर्टकट मेथड से आप आगे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। These questions will help you in solving AP and higher questions in higher classes in 11th and 12th. Okay? तो यहाँ तक आप लोग पढ़िए। कोई डाउट है? If any doubt, join my Telegram group. As usual, I am saying the questions are coming. Okay? So solve करिए, देखिए, अगर कोई डाउट है अभी तक में तो पूछिए and enjoy maths. Not do, please don't be in tension when you are solving maths. बार बार मतलब relax way में maths solve कीजिए. Enjoy it with me. Okay? Have a nice day.